हेलो। 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 आया आया किधर आ गया? फोन आ गई कि नहीं? हेलो। गुड मॉर्निंग। हुए तो नहीं अभी? मैंने तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके।
बच्चे बोर्ड विजिबल है सबको? हेलो, Yes, sir. विजिबल है ना? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Good morning, sir. बोर्ड विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. देख हम की करी जाने छे यहाँ से वॉल्यूम मिक्सर खोलबो देख ना पार्टिसिपेंट जो भी आई वॉल्यूम मिक्सर खोलबो अभी सभी आए नहीं है, ज्वाइन नहीं किया सभी ने। ई मास्टर मार्क जे करे छुका में ना 2-3% कंप्लीट आए छे नाम बोलते तो समझ में आ जाए। प्रधानमंत्री अरे शुरू बच्चे। Good morning, sir. Good morning all of you. Let some students sit pending to join them. I wait for 1 or 2 minutes more. किसी को राइट नाउ प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम बच्चे? Facing any problem regarding some previous lecture? लास्ट टाइम हमने कहां तक किया था बच्चे? What have you covered up to the last time? We have to covering your what types of four variable K-map. Hello. Sir, K-map करा था. K-map किया था. K-map we have the study regarding with your one variable, two variable, three variable and the four variable. तो फोर वेरिएबल के मैप किया था हमने कुछ कि अब फोर वेरिएबल के मैप को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? Sir, 4 variable तो नहीं किया शायद. फोर वेरिएबल किया था जहां पे हमने वी हैव टू रिक्वायर्ड अप टू Sir, किया था 4 variable. up to your 16 boxes are required for the four variable. ऐसे किया था. अगर फोर वेरिएबल को करेंगे we have to using 2 raised to power 4, that is the 16 boxes are required for that. Okay, now start with the some examples of your K map. Okay, एक एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं. I have to write some example. गवर्नमेंट के ना ई पॉलिसी बढ़िया लगा था चलो मेरा सरकारी वाला सब कुछ स्पॉन्सर है तब प्राइवेट कंपनी को बिजली विभाग दे दिए हुए हैं क्योंकि तुम कमाओ हम मेरा जरिए नहीं होगा तुम वो हमको दे दो बाकी का Now first example is now. ये चीज सही है सब लोग ये स्काई साफ है देख ले ना साफ का काम ये ना तो टीटी सबके देखे थे हां भाई 10 रुपए बेसी ले अच्छा से यात्रा हो जाए टाइम टू टाइम ट्रेन चले सही है कि सरकारी में थोड़ा ले जाए यहाँ से आया हुआ सबसे पहले एग्जांपल करते हैं बच्चे. y equal to बाकी में खाना मिले छे ना मार खा रहे हो कि लोगों का आवाज है कैसा बोले तो लगे चीज सुनाता हूं नाम के कौन summation of m, that is a 1 3 5 3 5 9 11 13. Okay, all of you please here जो आपके wait.
वेट करो, दूसरी एग्जांपल करते हैं पहले शॉर्ट वाली। कुछ थोड़ा इसी को करते हैं। All of you, my board is now visible to all of you. Hello students. Yes, sir. Visible है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, I have write some statement y equal to summation of m with the कुछ whenever which terms 1, 3, 5, 9, 11 and 30. Okay. This Boolean expression simplify by using K-map. Okay, everyone. K-map. So I have to write some. मैंने पिछले कुछ previous lectures में आपको बताया था. If you write summation m, that means that is your min term. If pi m, capital M, that is related with your max term. All of you understand these terms? If I have write with your small m with the summation of sin m, that is the all term are related with your min term. If pi with the capital M, that terms are related with your max term. Clear everyone this point? I have the previously just हमने min term और max term पढ़ी थी regarding with your POS and SOP expression. I have write the small m that is denoted with your min term, and you have the capital M that is denoted with your max term. All of you understand this one? Hello, hello, students. Clear everyone up to this point? Yes, I have sir. to write. ध्यान से Yes, sir. समझना बच्चे, एक बार मैं बड़ी आराम से समझाऊंगा आपको. Please listen carefully, all of you, and muted your mic and audio because that is the K-map is the basic of your DCLD. Last तक DCLD में हमें ये K-map काम आएगा to simplify your Boolean expression. ध्यान से समझ लो, किसी को भी डाउट हो बार बार समझाऊंगा, बट एक बार क्लियर करके मैं बिल्कुल आराम से आपको एग्जांपल सोल्व करके बता रहा हूँ. Clear? I have to write some example. Y equal to summation of m with that term 1, 3, 5, 9, 11, 13. So what is the mention these term related? ये term कौन सी होगी फिर आपके लिए? What is the these terms are written in this expression? That is your min term. Min term that is denoted with your capital small m, that is m3, m5, m9, m11 plus m13. यही expression होगा आपका, because that is the min term and each expression should be write in the form of your SOP manner. Hello class, listen. देख रहे हो बच्चे, visible है यहाँ तक? I have write same equation by the help Yes, of with sir. your min term. Yes, sir. जितनी टर्म्स मेंशन है मैंने उसको मिन टर्म से मेंशन कर दिया. नाउ सी यहां पर आपकी मिन टर्म कहां तक है? चेक आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मिन टर्म. What is the maximum value of min term? That is your 13. 13. Okay, 13. 13 means 13 min term आ गई है आपकी. 13 decimal point आ गया है एक तरह का. तो how many variables are required for this K-map? How many variables regarding for this expression? इस expression में जो मेरी min term है, that is up to your 13 level. Okay, M13. So इससे denote हुआ कि जो मेरा variable है, it should be now 4 variable are using for this K-map. पता लगी पहले बात देखो. Because 13 की वैल्यू आ गई है, that is up to your 15. 0 से लेकर 15 तक उसमें min term आ गई है. अगर 8 तक आती है तो तब आपका 3 वेरिएबल का K-map यूज होना था. यहाँ पे 13 की वैल्यू हो गई है. So that is mean you have to using your 16 boxes K-map. यहाँ तक देखो बच्चे, क्लियर है? I have to write some points. हमारे पास जो एक्सप्रेशन था, that is the summation of m 1, 3, 5, 9, 11, 13 min terms value. That is the maximum value is now 13. 13 should be covered under the value of 2 raised to power 4. 2 raised to power 4, that is the 16. That is the 13 under the category of your 16.
16 means that is required the 16 boxes K map. So means that is 2 raised to power 4 variable K map. So means 16 boxes are required to for this solve this expression. Yes or no? Yes, लोग sir. students यहाँ तक clear है? Sir, Now please. I have draw the 16 boxes K map here. Excuse me, sir. Yeah, tell. Sir, please repeat. बच्चे I have write some example for describe the K map. K map के लिए मैंने एक equation लिखा. I have to simplify this equation by using K map. Okay. So that is all small m mentioned. That is your min terms. Min term means जो भी हम expression इस min terms में लिखेंगे that is under the category of your SOAP. Okay. SOAP में हम ये category लिखेंगे तो y की मेरी value should be equal to your y equal to small m m3 m5 m9 m11 plus m13. So up to min term is now 13 level. So means that are the 4 variable are using. M13 आ गया 13 14 15. अगर 16 आ जाता तो that is required for the 5 variable K map. Okay. So for this purpose we have to draw the 16 boxes K map. Okay. 16 boxes K map के लिए हमारे पास कितने वेरिएबल होते हैं? How many variables? 4 variable. Okay. So 4 variable कौन-कौन से हो गए? That is the A, B, C and D. I have to describe the manner in very basic one. Okay. 4 variable आ गए आपके. 4 variable आ गए A, B and C, D. That is the A, B. This is your C, D. I have the right expression 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. देखो यहां तक समझ लगी सबको बच्चे? All class understand this one? I have to write some manner 0, 0, 1. This is the box in right 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. That I have represent the min term for that 16 boxes came in. So 0, 0 है, that is the C bar, D bar, C bar, D, C, D, C, D bar. This is 0, 0. In term of min term, I have write A bar, B bar, A bar, B, A, B, and A, B bar. All of you understand this one? Excuse me, sir. You tell. Sir, 15 के नीचे 11 नहीं आएगा? वहाँ 11. यहाँ तक clear है? I have to describe the geometrically K map with the 416 boxes. I am write the all variable is there. आप A, B और C, D को reverse भी कर सकते हो. That is your another phenomenon. Clear? A, B मैंने यहाँ पे लिख लिया. Clear? So now I have to solve this expression. आपके पास min term कौन सी है? 1, 3, 5, 9, 11, 13. I have to solve the previous one. जब हमने SOP और min term की कुछ definitions पढ़ी थी, तो मेरी जो min term होती है, how it should be identified by 1 or 0? Tell. मेरी जो min term को 1 से, तो means यहाँ पे आपकी min term mention है. तो पहली min term M1 है. M1 पे क्या वैल्यू आएगी? 1. That is the 1. 3 पे क्या आएगा? 1. 5 पे क्या आएगा? 1. 9 पे क्या आएगा? 1. 11 पे क्या आएगा? 1. 13 पे क्या आएगा? 1. So that is the 6 1 which should be mentioned in that. All of you understand this one? I have to put the value of 1 for the each and every min term box. Clear है बच्चे यहाँ तक? All of you clear how I put the value of the min term in the boxes according to the value of the min term. जोन से min term है उस पे मैंने value 1 denote कर दिया because your min term is denoted by your y value 1. Logic high it should be denoted by 1. Logic 0 it should be denoted with your max term. अगर यहीं पे मेरी max term होती तो I have write some expression in the term of value 0. तो यहाँ पे हमारा capital M होना था.
तो जो जो वैल्यू होगी तो उसमें मैंने वैल्यू कौन सी मेंशन करनी थी, 0। बट यहाँ पे हमारी इक्वेशन पे क्या है, समेशन ऑफ स्मॉल m दैट इज रिलेटिव विद योर मिन टर्म। तो मिन टर्म के अकॉर्डिंग मैंने ये एक्सप्रेशन राइटर कर दिया। देखो यहां तक किसी को डाउट अप टू योर के मैप, आई हैव द स्टार्टिंग विद द 4 वेरिएबल। मैंने 1 वेरिएबल की एग्जांपल नहीं ली, 2 वेरिएबल की एग्जांपल भी नहीं करवाई, 3 वेरिएबल की भी कराई। आई हैव द स्टार्टिंग विद द 4 वेरिएबल, उसमें सभी वेरिएबल कवर हो जाएंगे आपके। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वन? चलें आगे? चलें बच्चे? हेलो, Yes, sir. चलो। Yes, sir. Now next step is Yes, to sir. solve the K map is now। K map में नेक्स्ट सिनेरियो क्या सॉल्यूशन करने का, जो हमने मेथड अभी तक पहले नहीं किया। K map बेसिकली इज डन बाय यूजिंग बाय पेयरिंग। पेयरिंग करनी होती है यहाँ पे। पेयर आइदर 2 में मेरे 2 की पेयर कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं दैट इज अ क्वाड, 8 की कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्टेट, एंड 16 की कर सकते हैं बाय हेक्सागोनल। So I have to make the pairing of each and every one. So now, so pairing के according I have to choose that pairing जो हमारी maximum pairing बनती हो। अब वो pairing हमारी बनेगी कैसे? देखो यहाँ पे हमारे 6 टाइम 1 लिखा हुआ है, सभी देख रहे हो बच्चे? So it should be possible। सबसे पहले यहाँ पे pairing कैसी है? K map में जो हमारी pairing है, it should be possible pairing by using horizontally and by using vertically। हम डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पेयरिंग में समझ आ जाएगी कि पेयरिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे के मैप का सिनेरियो है कि हमने पेयरिंग करनी है, वी हैव शुड डू द पेयरिंग बाय मैक्सिमम मेथड ऑफ पेयरिंग। कि सबसे पहले हमारे 16 की पेयरिंग हो, 8 की पेयरिंग हो, 4 की पेयरिंग और 2 की पेयरिंग हो। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मेरी मैक्सिमम पेयरिंग किसमें हो रही है बताओ? 4 वेरिएबल की कौन सी मिन टर्म की हो रही है? 1, 5, 13 और 9। आई हैव टू सर्कल दिस वन। देखो ये पॉसिबल है क्वाड, यहाँ पे क्वाड बन रहा है आपका। यहाँ पे ऑक्टेट फिजिबल नहीं है क्योंकि 8 1 नहीं है। Yes, तो मैक्सिमम sir. फिजिबिलिटी है क्वाड बनने की। तो ये एक क्वाड बन गया आपका 1। यस और नो? तो हमारी पॉसिबिलिटी है के मैप में हमने सभी मिन टर्म्स को पेयर में लेके आना है अगर मैक्सिमम पेयरिंग बन रही होगी। ठीक है, अब हमारे पास कितने 1 बच गए हैं यहाँ पे? 1 और ये मिन टर्म बच गई है, तो इसकी पेयरिंग पॉसिबल है। तो के मैप में वी हैव टू डू पेयरिंग आल्सो इन क्वाड इन मे बी इन दिस मैनर। ये भी एक क्वाड बन जाएगा। अगर आप इस के मैप को फोल्ड कर दो तो ये दोनों 1 इसके ऊपर आ जाएंगे। Yes, sir. ओके, तो आई हैव टू क्वाड इज आल्सो मेड बाय दिस मैनर इन द के मैप। देखो ये एग्जांपल में कुछ क्वाड के बारे में पता चला। सबसे पहले मैंने एक क्वाड बनाया। इस क्वाड की पहले वाले क्वाड की वैल्यू क्या थी मेरी? आई हैव टू क्वाड वैल्यू दिस वन। अब आपने इस जहां पे आपने पेयरिंग की होगी उस कॉलम के अकॉर्डिंग आपने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली में जो वेरिएबल कॉमन होंगे वो आपने राइट करने हैं। अब देखो ये वाला क्वाड है, सबसे पहले यहाँ पे मेरी ये वैल्यू मींस वर्टिकली आ रही है। वर्टिकली में मेरा सी बार एंड डी तो कॉमन आएगा ही आएगा, ये सब में ही आएगा। और हॉरिजॉन्टली में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, मेरी कोई कॉमन नहीं आ रही। तो आई हैव टू राइट सिंपली एक्सप्रेशन सी बार डी फॉर दिस क्वाड। यहां पे देखो बात समझ लगी बच्चे? I have to write the expression by the common method of the variable by vertically and horizontally। अब सिमिलरली सेकंड क्वाड को देख लो, ये मेरा क्वाड था। इन दोनों क्वाड में कॉमन क्या आ रहा है? What is the vertically in that? कॉमन क्या आ रहा है? Is now D। मान लो इस क्वाड की वैल्यू क्या है मेरी? इस क्वाड की, ये एक ही क्वाड है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन आ रहा है बच्चे? वर्टिकली सॉरी, सी बार डी और सी डी में दोनों में क्या कॉमन है? डी। ओके, एंड हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है? हॉरिजॉन्टली दोनों में देखो, यहाँ पे ए बार बी बार है, यहाँ पे ए बी बार। सो कॉमन इज नाउ बी बार। So now the final expression you should have to write, that is here y equal to c bar d plus b bar d. That is the final expression simplification of this Boolean expression that is represent in the form of your min term। देखो पता लगा बच्चे यहाँ तक? सर सी बार डी कैसे आया?
C बार D कैसे आया? C बार D that is the making quad of this one. ये मैंने वर्टिकली क्वाड बनाया, तो वर्टिकल में मेरा कौन कौन सी चीज कॉमन आ रही है? आप हॉरिजॉन्टली भी चेक कर लो, वर्टिकली। वर्टिकली में तो ये सारी एक ही लाइन है, तो एक ही सारी लाइन कॉमन आएगी C बार D। हॉरिजॉन्टली में कोई भी आपस में कॉमन नहीं है कि एक कॉलम सबके साथ कॉमन हो, कोई भी कॉमन नहीं आएगा, बिकॉज चारों अलग अलग है। बिकॉज ऑल वेरिएबल शुड बी चेंज वन बिट एट ए टाइम। तो मेरा हॉरिजॉन्टली में कोई कॉमन नहीं निकल रहा, ओनली वर्टिकल में ही कॉमन निकल रहा है, दैट इज द C बार D। सिमिलरली सेकंड क्वाड में मैंने क्या किया, ये दो मेरी कॉलम थे, दो रो थी, दोनों रो में मेरा कॉमन क्या आ रहा है? वर्टिकली आ रहा है D, तो मैंने D राइट अप कर दिया साथ में, और मेरा हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन आ रहा है? A बार B बार एंड A बार B, दैट इज अ B बार। So that is expression in the right in the term of your min term. So we should have to write this min term expression in the SOP manner. So that is the sum of the product manner. All of you understand this example? Check out this one. देख लो बच्चे, एक बार किसी को डाउट आता है इस एग्जांपल में, मेरे से पूछो। Then I have to write some more example for regarding the pairing. सर B बार D बताना एक बार। B बार D। ये पहले देखो क्वाड कैसे बन गया, ये पता लग गया आपको? आई हैव टू फोल्ड करके ये वन दोनों वन के ऊपर आ जाएगा। अगर मैंने ये बॉक्स को फोल्ड कर दिया तो ये दोनों वन इसके ऊपर आ जाएंगे, तो इट शुड बी पेयरिंग क्वाड विद फ्रॉम दिस वन, तो ये एक तरह का क्वाड बन जाता है। ठीक है, अब क्वाड बना है, क्वाड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये चीज चेक करनी है कि मेरे दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कॉमन से वेरिएबल कौन से हैं। आप बताओ जिन्होंने क्वेश्चन किया अभी, ये दोनों कॉलम में सबसे पहले वर्टिकली क्या कॉमन आ रहा है? एक है C बार D, एक है CD, क्या इसमें कॉमन है? सर यही पता नहीं चल रहा कैसे आप कॉमन कैसे निकाल रहे हो। C बार D और CD ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल में से कॉमन ढूंढना है दोनों में से। C बार है, यहाँ पे C है, ये दोनों में कॉमन है? नहीं, डिफरेंट है। D दोनों में DD सेम आ रहा है, तो D कॉमन हुआ। हाँ जी सर। ये वर्टिकली हो गया। अब हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली दोनों कॉलम में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे है पहली कॉलम की पहली रो की वैल्यू है A बार B बार, और लास्ट रो की वैल्यू है A B बार, तो इसमें B बार कॉमन है। हाँ जी सर। तो वो मैंने B बार ले लिया। यस सर। ये है मींस जब आप क्वाड बनाओगे, इन टर्म ऑफ मेकिंग यू हैव टू क्वाड्रेचर इन योर के मैप। के मैप में जब आप क्वाड्रेचर बनाओगे, इन दैट केस क्वाड में क्या होगा? आपके पास कितने वेरिएबल आए हैं मेरे को बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कितने? एक क्वाड जब आपने बनाया था तो कितने वेरिएबल आपके एक्सप्रेशन में आए हैं? 2। बात समझ रही हो ये चीज? अगर यहीं पे पेयर बन जाता, मान लो किसी यहाँ पे वन का पेयर बन जाता, तो उस केस में क्या वैल्यू आएगी मेरे को बताओ? मान लो 2 वन मेरे यहाँ पे भी है, वो मैंने यहाँ पे इसके ये वन को अगर मैं के मैप से यहां भी फोल्ड करता हूं तो पेयरिंग पॉसिबल है किसी के साथ? टेल, आई हैव टू मेंशन मिन टर्म 1 1 हियर आल्सो। इट इज पॉसिबल टू मेकिंग क्वाड फॉर दिस 2 1। वो पॉसिबल है, की पेयरिंग हो जाएगी, इनकी पेयरिंग होगी। इनका अब क्वाड नहीं बनेगा तो इनकी पेयरिंग होगी। तो अगर इनकी पेयरिंग हो जाती है तो इन पेयर का हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या होगा? फॉर एग्जांपल कि मान लो इसमें ये दो और थी, इनमें कॉमन क्या आ रहा है पहले ये बताओ मेरे को? वर्टिकली दैट इज द CD बार, ये कॉमन आ रहा है, वर्टिकली है, कॉमन आएगा CD बार ही आएगा, केवल वही कॉमन होगा। यहाँ पे CD बार ही आएगा बच्चे। अगर ये पेयर का आप एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो ये पेयर बनेगा, तो इस पेयर में वर्टिकली क्या कॉमन है? CD बार एक ही टर्म है, दोनों में आ रही है, कॉमन है। ये पता चला बच्चे? हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली इज नाउ दोनों में क्या वैल्यू आ रही है? A बार B एंड AB। अब दोनों में हॉरिजॉन्टल में क्या कॉमन है? B। दैट इज एक्सप्रेशन इज BCD बार। तो मेरे इस एक्सप्रेशन में प्लस ऐड करके मेरा एक्सप्रेशन में y में CD बार प्लस B बार D प्लस BCD बार भी हो जाएगा। अब आप यहां पे ये चीज चेक करो, जब मेरा क्वाड बना था तो उस वक्त मेरे 2 वेरिएबल आ रहे थे, जब मेरा पेयर बना तो मेरे कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 3 वेरिएबल। सिमिलरली अगर मेरा यहाँ पे ऑक्टेट बन जाता
तो मेरे पास केवल एक ही वेरिएबल आता, इट मे बी सी डी बी ए, कोई भी सिंगल वेरिएबल। तो मींस इसलिए हम पेयरिंग, हम इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर रहे हैं। मिनिमाइज करने के लिए इस सबसे पहले हम यही फिनोमेना यूज कर रहे हैं, हाउ टू मेक टू पॉसिबल द मैक्सिमम पेयरिंग। मैक्सिमम पेयरिंग करेंगे, उसके उसके लिए हमारे पास मिनिमम वेरिएबल आते हैं। जैसे आपने क्वाड में देखा तो मेरे पास 2 वेरिएबल आए, अगर मैं क्वाड्रेचर बनाता हूं, पेयर बनाता हूं, तो मेरे पास 3 वेरिएबल आ जाते हैं। So that's why my approaching is to now to make the maximum pairing according to with their hexagonal, octet, quadrature and the pair length. अगर यहां पे मान लो एक और एग्जांपल देते हैं, देखो बताओ, ये था मेरा बॉक्सी का, ये पेयर नहीं बना हुआ था, खाली एक ही वन यहां पे होता, वन मेंशन इज आल्सो हियर। तो तब हम क्या करते बताओ, इस वन की किसी के साथ पेयर, क्वाड्रेचर के कुछ भी पॉसिबल है। और एक चीज आपको और बताता हूं, देखो जब भी आप पेयरिंग करोगे, पेयरिंग और क्वाड्रेचर और ऑक्टेट कुछ भी बनाओगे, इट मेक बी फिजिबल एट दैट एंड कि उस पेयर में एक मिनटम आपकी डिफरेंट हमेशा होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? अब देखो यहां पे जब मैंने क्वाड्रेचर बनाया था, तो उस केस में मेरे 2 वन आपके प्रीवियस पेयर वाले यूज हो रहे हैं। इट मे बी फिजिबल दैट कि आप इसका केवल पेयर ही बना लो। बच्चे ये सिचुएशन चेक कर रहे हो जो मैं बता रहा हूं? यस सर। यहां पे जब मैंने 2 क्वाड बनाए थे, एक वर्टिकली बना लिया, एक हॉरिजॉन्टली करके बनाए थे क्वाड, तो यहां पे तो मेरे ये भी फिजिबल था कि मेरे दोनों वन आपस में पहले यूज हो चुके हैं। आई हैव नॉट यूज वंस अगेन, बट आप यूज उतनी देर तक दोबारा कर सकते हो अगर आपके उस पेयरिंग में एक से ज्यादा मिनटम और पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे क्वाड इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास अभी 2 वन बचे हुए थे। आई हैव टू मेक इट पॉसिबल कि मैं इसका पेयर भी बना दूं। एक्सप्रेशन आपका सही आ जाएगा, बट आप ये चीज चेक करो, पेयर के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे जो लास्ट पे सिंप्लीफिकेशन मेथड आना था, वहां पे एक वेरिएबल और आ जाना था। क्वाड से क्या हुआ, मेरे पास एक वेरिएबल कम हुआ। दैट्स इज अप्रोचेबल टू डूइंग द के मैप इज दैट आई हैव टू मैक्सिमम मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पे क्वाड इसलिए फिजिबल कर दिया मैंने, दूसरे ऑलरेडी क्वाड के वन इसलिए यूज कर लिए क्योंकि उसके साथ मेरे जो नए वाले वन भी मिन टर्म साथ में यूज हो रही हैं। अगर मेरी ये चारों मिन टर्म्स यूज हो रही हैं, तब इज नॉट फिजिबल कि मैं उसके दोबारा क्वाड बनाऊं। ये जो मैंने कुछ बातें बताई हैं पता लगी है? अब उसके अकॉर्डिंग मेरे एक एक्सप्रेशन में यहाँ पे सिंपल वन लिखा हुआ है, इट इज नॉट फिजिबली डायगनली पेयरिंग। डायगनली पेयरिंग पॉसिबल नहीं है इसमें। ओके, ये चीज छोड़ दो, इसमें के मैप में डायगनली पेयरिंग नहीं होगी। अब मेरा यहाँ पे केवल वन लिखा हुआ है, तो बताओ इसका मैं क्या करूंगा, बताओ, टेल एनीवन। आई हैव द वन इज मेंशन हियर, मेरा एक मिन टर्म यहाँ पे भी है। इट इज फिजिबल टू पेयरिंग विद द समवन वन मिन टर्म। यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा, कोई ऑक्टेट नहीं बन रहा, कोई क्वाड नहीं बन रहा, तो ये वन की मेरी किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं है। मैं इसको फोल्ड भी कर लेता हूं तो ये वन आइदर यहाँ वन होगा तब पेयर होगी, यहाँ पे वन होगा तब पेयर होगा, यहाँ पे वन होगा। डायगनली इट कैन नॉट बी पेयर्ड विद ईच अदर। तो ये वन का मुझे एक्सप्रेशन सीधा ही लिखना पड़ेगा, जो वर्टिकली क्या आया सी डी बार और हॉरिजॉन्टली क्या आ गया ए बी। सो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर दिस वन। बच्चे बताओ यहां तक किसी को डाउट? इस के मैप के अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ पेयरिंग के बारे में बताया। सर 10 वाले बॉक्स में भी 1 लिखा हुआ है। 10 वाले में भी नहीं, 10 वाले पे नहीं है, खाली यहाँ पे वन है। 10 वाले पे वन नहीं, यहाँ पे वन, सिंगल वन इज मेंशन इन दैट। देखो कुछ क्लैरिटी हुई है, हम आगे एग्जांपल्स और करते हैं। आगे आगे एग्जांपल करें कुछ और एक आधी? यस सर, यस सर। यस सर। यहाँ से कुछ अंडरस्टैंड हुआ? आगे अगली एग्जांपल करते हैं, उसको हम और आइडेंटिफिकेशन से कुछ और Yes, पेयरिंग sir. डालते हैं, तो आपको मैक्सिमम पेयरिंग पता लगेगी कैसे होगी। ओके सर।
चलो ये करते हैं, नोटबुक में सभी साथ में करें। y equal to summation of small m. I have the mention of the min term is 0, 1, 2, 5, 13 and 50. That I have the mention your min term and the simplify this equation by using K-map. So tell one thing, that is the SOP manner or POS, that is the min term or max term? Tell the students. Min term, sir. Min term. Min term. Because I have the mention small m. देखो आपका एक्सप्रेशन तब तक गलत भी हो सकता है, मान लो किसी ने 1 की जगह उस K-map में 0 ही डिस्क्राइब कर दिया, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये मैक्स टर्म है, चाहे आपने पेयरिंग सही बना दी हो। क्लियर? सो इसमें 0 और 1 का बहुत मैटर है आपके डीसीएलडी में कि 0 और 1 कहां पे लिख रहे हो। आप समझोगे कि मैंने K-map सही बना लिया, मेरी तो पेयरिंग भी सही है, बट आपने उसमें 1 की जगह लिख ही 0 दिया, तो मींस यू आर डूइंग विद योर पीओएस मैनर। तो आप एसओपी पे क्वेश्चन दिया, आपने पीओएस से सॉल्व कर दिया, तो वो टोटल K-map रॉन्ग हो जाएगा। नाउ टेल द वन थिंग, हाउ मेनी वेरिएबल ऑफ दिस K-map, ये बताओ पहले। 4 sir. 4 because that is the min term present is that up to your 50, so means I have to require the 16 boxes K-map here. Yes, sir. boxes बनाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर जैसे आप देख के बता रहे हो कि ये पीओएस है और एसओपी है, और सर ये आप एक बार बताना कि आप कैसे जज करते हो। बच्चे स्मॉल कैपिटल मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई है, दैट इज स्मॉल एम। स्मॉल एम दैट इज डिनोटेड विद योर मिन टर्म। अगर मिन टर्म है, मिन टर्म इज नाउ द ईच इंडिविजुअल टर्म ऑफ योर एसओपी एक्सप्रेशन, और अगर यहाँ पे 5 विद कैपिटल एम होगा, दैट इज डिनोटेड विद द पीओएस टर्म। हम पीओएस से भी सॉल्व करेंगे एक दो K-map, ओके? हम पीओएस से भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो पहले ये इक्वेशन देखो, इसमें आपको 4 वेरिएबल K-map आ गया, ये पता लग गया यहाँ तक हमने ये K-map ही क्यों बनाया। सबसे पहले तो यही हमें सिनेरियो पता लगना चाहिए कि हमने 16 बॉक्सेस का K-map ही क्यों बनवाया। ये लग गया पता बच्चे? देने ही मेरे। हेलो क्लास, मैं दो रख दे, मैं बाद खाऊं। To be muted your voice, tell the my question answer। सबको ये पता चल गया कि मैंने यहाँ पे 16 बॉक्सेस का K-map ही क्यों बनाया? Yes sir. ओके, so now I have to, जैसे जैसे मैं सिनेरियो मेथड यूज कर रहा हूँ, प्लीज यू डू आल्सो फॉर आल्सो डन इन योर कॉपी, बिकॉज आपको इससे गलती नहीं होगी। जो मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ, दैट इज 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14, that is the mention your min term or whatever your next term, जब आप next term का expression करोगे, so that is your 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1, because K-map is a requirement of lot of practice at your end। ये तो आप भूल जाओगे, यहीं 2 3 पे कहीं पे गलती हो गई तो आपकी K-map की जो नोटेशन है वही गलत हो जाएगी ज्योमेट्रिकली। कहीं आपने 1 की जगह 10 कर दिया, 10 की जगह 11 लिख दिया, तो ये नोटेशन आपको पहले लिखनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? अगर एसओपी मिन टर्म है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 0 0 को मैं a बार b बार लिख रहा हूं, तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन प्रीवियसली इन योर पीओएस एंड एसओपी मैनर। देखो यहां तक पता लग गया सबको? देखो बच्चे यहां तक क्लियर है? ऑल ऑफ यू? Yes sir. Clear everyone? Yes sir. Yes Now, sir. I have the mention the min term। min term है तो मैं उस min term पे 1 मेंशन करूंगा। 0 पे 1 आ गया, 1 पे 1 आ गया, 2 पे 1 आ गया, 5 पे 1 आ गया, 13 पे 1 आ गया एंड 15 पे 1 आ गया। यही क्वेश्चन है देखो। देखो बच्चे क्लियर है? Yes. अब बताओ, सबसे पहले यहाँ पे ऑक्टेट फिजिबल है, ये बताओ मेरे को कहीं एंड पे। ऑक्टेट तो फिजिबल होगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास मिन टर्म ही 6 है। क्यों?
अगर 8 मिन टर्म होगी तभी हम फिजिबल दे सकते हैं कि 8 की पेयरिंग पॉसिबल हो। क्लियर वन थिंग और नॉट? हेलो, सो नाउ यहाँ आई हैव टू मेंशन। तब अब आप क्वाड की तरफ जाओ। आप देखो यहाँ पे क्वाड फिजिबल है, कहीं पे क्वाड बन सकता है? देखो ये मिन टर्म दी गई है 1 2 3 4 5 6, कहीं पे क्वाड बन रहा है आपका? मैं आपको इधर से भी फोल्ड कर लेता हूँ, इधर से भी फोल्ड कर लेता हूँ, देखो कहीं पे क्वाड फिजिबल है? नो सर। नो सर। कहीं पे क्वाड फिजिबल नहीं है। तो अब हम पेयर की तरफ चले। सबसे पहले पेयर इसको बनाते हैं। ये पेयर पॉसिबल है? यस सर। ये पेयर पॉसिबल है? यस सर। अगर मैं के में आपको फोल्ड कर देता हूं तो ये पेयर पॉसिबल है? यस सर। देखो कोई वन हमारा बच गया मिन टर्म के लिए? नहीं, सभी कवर हो गए हैं पेयर में। क्लियर है बच्चे? अब आप एक चीज और यहाँ पे सिनेरियो देखना कि आप गलती कर सकते हो अपने एंड पे। आप कुछ ऐसा सिनेरियो भी कर सकते हो कि इसको आप पेयरिंग भी कर लो, बट अब इसको पेयर करने का कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज वी आर यूजिंग वन ऑलरेडी पेयर हो चुका है किसी के साथ, तो कोई वन बचा नहीं है, अभी मिन टर्म बची नहीं है कोई। तो यहाँ पे आपका अब एक्सप्रेशन सोल्व करने की टर्न आ गई है। आई हैव टू राइट एक्सप्रेशन वाई। सबसे पहले मुझे इस एक्सप्रेशन का बताओ, इसकी क्या मिनिमाइजेशन आएगी बताओ? A bar C bar D। That is now A bar C bar D। देख लो कैसे आएगा। ये पेयर है, वर्टिकली दोनों ही कॉमन आएंगे, उसके लिए मैंने C bar D लिख दिया, और हॉरिजॉन्टली दोनों में कॉमन क्या है? A bar। तो है मेंशन हियर A bar C bar D। देखो क्लियर है बच्चे सबको? Yes, all of you clear this one? Yes sir. I have write the expression for this one। ABD। तो हॉरिजॉन्टली ये कॉमन आएगा AB, और वर्टिकली देखो दोनों में क्या कॉमन है? दैट इज योर D। ABD। नाउ एक्सप्रेशन क्लियर? अब इस वाले एक्सप्रेशन पे आ जाओ। A बार B बार D बार। दैट इज नाउ A बार B बार, दोनों में कॉमन क्या है? दैट इज योर D बार। So right, I have to add of these expression, that is equal to of your y। ये तीनों को ऐड कर लो, that is the final equation for your by using your K map। देख लो बच्चे, क्लियर है सबको? सर 13 15 का बताना एक बार। 13 15 ये देखो पेयर बन गया आपस में, ये पेयर बना हुआ है इसका एक्सप्रेशन। ये हॉरिजॉन्टली दोनों में वन कहां पे आ रहा है? इस पे। ये दोनों में कॉमन आ रहा है AB, देखो ये AB दोनों में कॉमन आ रहा है। हाँ जी। तो राइट एक्सप्रेशन AB। अब वर्टिकली देखो दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है इसमें से? D। सर या टेल बताओ सर, अगर 15 पे 1 ना होता 13 पे होता। अगर 15 पे 1 ना होता 13 पे तो 13 मान लो। अब आपकी एग्जांपल हो गलत है, ये पहले एग्जांपल पता लगी है बच्चे? यहाँ तक देखो जो हमारी करंट एग्जांपल थी, ठीक है, ये पता लग गया पेयर? यस सर, ये पता लग गया। अब आपका एक क्वेश्चन आया कि इसको भूल जाओ पिछले को, कि यहाँ पे मेरा वन है ही नहीं। यस यही क्वेश्चन है आपका? यस सर। 15 पे मेरा वन ही नहीं है, तो सर हम फिर 13 और 5 को पेयर बन जाता। ठीक है, क्लियर दिस वन? सर मतलब कि पिछले वाले को ले सकते जो पेयर हो, पिछले वाले को वन हम ले सकते हैं। मतलब रिपीट हो सकता है। क्वाड में भी आप वन, क्वाड पे आप वन ले सकते हो। मान लो कोई क्वाड बना रहे हो, क्वाड में 4 वन चाहिए ना, 4 वन में आपके 3 वन पिछले भी हो सकते हैं, एक वन उसमें जो नया होना चाहिए। ठीक है सर। अगर ऑक्टेट बना रहे हो, ऑक्टेट में फिजिबल है कि 7 वन आपके पिछले कहीं यूज हो रहे हो, वन आपका बीच में एक मिन टर्म कोई ना कोई नई यूज होनी चाहिए आपकी। मतलब सर कोई एक एलिमेंट को कवर करना होना चाहिए। किसी भी एक, इसीलिए हम मैक्सिमम पेयरिंग यूज कर रहे हैं। कोई एक वन है तो हमारा वहां पे पेयर भी बन रहा होगा, तो क्वाड भी बना होगा, तो मेरी ये फिजिबिलिटी है, मैं उसको क्वाड बनाऊं। जैसे इससे पिछली एग्जांपल में आपने वही चीज देखी थी, जब मैंने वर्टिकली 2 ऐसे क्वाड बनाए थे, वहां पे फिजिबल था कि मैं पेयर भी बना लूं, बट मेरे दोनों वो वन यूज हो सकते थे इन केस ऑफ क्वाड। क्वाड मैंने हाई वेरिएबल इसलिए बनाया, आपने चेक किया होगा, जब हम क्वाड बनाते हैं तो मेरे 2 वेरिएबल आते हैं, जब मैं पेयर बनाता हूं तो मेरे 3 वेरिएबल आते हैं। अगर मैं ऑक्टेट बना देता हूं तो मेरा 1 वेरिएबल आएगा। तो जितने वेरिएबल कम होंगे उतनी मिनिमाइजेशन कम होगी, मैक्सिमम होगी। मिनिमाइजेशन वही है ना कि आपकी इक्वेशन में उतने वेरिएबल कम हो जाएंगे। क्लियर दिस वन? यस सर।
कुछ एक दो पोल है प्रीवियस रिलेटेड, उसको सॉल्व करो फिर चलते हैं आगे। पोल दे रहा हूं आपको, इसको मुझे आंसर दो बच्चे। कोई
हो गया बच्चे, पोल हो गया. That is your D, exactly your De Morgan theorem. Yes, sir. Clear everyone? Yes, sir. Okay, I have given you second pole. इसको करो अब. That is some simplification of your Boolean algebra. That is AB plus ABC plus AB bar. करो बच्चे. Solve this poll, बच्चे. Rest of the students, some only given you 45 answer. पता लग रहा है अब इस बूलियन एक्सप्रेशन में कोई मुश्किल तो नहीं आ रही बच्चे? स्टूडेंट्स, हेलो. सॉल्व हो रहे हैं ना अब? ये बाकी आपके बच्चे इतना तो इतनी एग्जांपल्स नहीं करवाई जा सकती. आई हैव to बेसिकली डू दैट एग्जांपल जिसमें काफी कुछ कवर हो जाए. बाकी आपके ये ना प्रैक्टिस से है सभी चीजें. चाहे आप के में आप देख लो, देखो मेरे कराने में आपको बहुत इजी लगता है. कर लो पहले एक बार इसको पोल को, फिर करते हैं शुरू. बताता हूँ फिर. सर, एक्सक्यूज मी सर. बताओ बच्चे. सर एक बार एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेना बाद में पोल के बाद. पोल के बाद कौन सा? यही वाला? हाँ जी सर, ये वाला जो मैंने अभी जो भी पोल भेजा हुआ है वो वाला. हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन सर. ये मैं बोर्ड पे करवा देता हूँ. ओके सर, थैंक यू. वो क्लोज कर लें, फिर मैं बोर्ड पे करवा देता हूँ. कर दो बच्चे. 4-5 स्टूडेंट्स आर पेंडिंग नाउ. गिव योर आंसर. to close this one. देख लो बच्चे, ये एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार. नाउ आई हैव टू टेक कॉमन ए बी इन दैट. ए बी कॉमन मैंने यहां से निकाल लिया. तो दैट इज द 1 प्लस सी प्लस ए बी बार. देखो ये क्लियर है. 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1. so that is the this equation, right? ए बी प्लस ए बी बार. क्लियर. यहां से मैंने a कॉमन निकाला, b प्लस b बार. b प्लस b बार की वैल्यू क्या है? 1. so that is the last final answer is here a.
यस सर। सर 1+C से बताना, वो पता नहीं चला। 1+C बच्चे, 1+C ए बी मैंने कॉमन निकाला, ए बी प्लस ए बी सी, यहां से सो 1+C आ गया। 1+C इट शुड बी इक्वल टू ईयर 1। C की वैल्यू आइदर 0 होगी या 1 होगी, तो आपका आंसर तो 1 ही आएगा बाय लॉजिकली। तो ये ए बी 1+C प्लस ए बी हो गया, ए बी प्लस ए बी बार, वहां से मैंने ए कॉमन निकाला, यहां लिख दिया बी प्लस बी पर। बी प्लस बी बार मीन 0 + 1 दैट इज योर 1, a into 1 that is your a. Final answer is now A. Clear all of you? यस सर। यस सर। चलो अब नेक्स्ट पोल है बच्चे के मैप का। नहीं, एक और एक्सप्रेशन करो इसका, चलो बूलियन अलजेब्रा का करो, सॉल्व करो इसको, प्रैक्टिस हो गया। डन सर। कर लो जस्ट 20 स्टूडेंट्स ने किया, कर लो, इसको टाइम लगेगा। डू क्विकली बच्चे, जल्दी करो। हो गया बच्चे? गिव यू आंसर, 10 स्टूडेंट्स आर पेंडिंग राइट नाउ, गिव यू आंसर क्विकली बच्चे। आई हैव क्लोज दिस पोल, जिसने आंसर नहीं दिया दे दो बच्चे जल्दी।
क्वेश्चन लिख दो, इसको भी सॉल्व करवा देता हूँ, बट इसको कराई होगी देख लेगा। ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बार बी। आई हैव क्लोज दिस पोल। देख लो बच्चे, किसी को कोई डाउट होगा। ए बी बार प्लस ए बार बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसको चेक कर लो एक बार, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो। यहां से मैंने ए कॉमन निकाला, दैट इज द बी प्लस बी बार। यस सर। यहां से मैंने ए बार कॉमन निकाला, दैट इज द बी प्लस बी बार। यही है बच्चे, चेक करो। b plus b bar, it should be now 1. Yes. b bar is now 1. So a plus a bar, it should be equal to here a. a plus a bar क्या होगा? 1 होगा। a plus a bar is now 1. 1। Yes sir. चेक करो बच्चे। Clear? So that is the answer is now 1. Clear? Now I have to give the one pole to regarding the K map. Now solve this one. K map को solve करो। It will take time 3 or 4 minutes. Take your time. I give you your time. Solve करो इसको। सर पोल नहीं शो हो रहा। एक्सक्यूज मी सर। सर पोल नहीं शो सर पोल नहीं शो हुआ। सर पोल नहीं शो हुआ। एक्सक्यूज मी सर। सर पोल नहीं शो हो रहा। ये सब पोल शो नहीं हो रहा है। बच्चे पोल शो हो रहा है ना सबको? पोल शो नहीं हो रहा है सर। पोल शो नहीं हो रहा शो। नेट की दिक्कत लग रही है। नो सर नेट की नहीं दिक्कत सर, किसी को नहीं हुआ। पोल शो नहीं हो रहा। नो सर। नाउ चेक दिस वन। अब वो है। शो नहीं हो रहा। हो गया शो बच्चे? यस सर। ओके। इसको सॉल्व करो, ऐसे ही ऑप्शन टिक मत करो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने से आपको बेटर लगेगा। बाद में मैं आपको बोर्ड पे भी ये करवा दूंगा। Question is now y equal to summation of m 1, 5 7 5 7 9 11 13
15. हो रहा है बच्चे सॉल्व? हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. सॉल्विंग दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. Sir, done.
हुआ बच्चे सॉल्व? चलो मैक्सिमम लोगों ने कर लिया इसका। आई हैव टू एक्सप्लेन इन दिस के मैप, जिसको पता नहीं लग रहा होगा चेक इन योर बोर्ड आल्सो। वैसे पता लग गया बच्चे मैक्सिमम लोगों को? यस सर। और आई हैव टू सी दैट इज योर के मैप, दैट इज द मेंशन इन द टर्म ऑफ योर मिन टर्म। So how many variables are required for to solve this K map? 4 sir. 4 variable that is required of the 16 boxes K map. इसकी एक बार पेयरिंग देख लेना, पेयरिंग ही मेन इंपॉर्टेंट है इसकी। I have to solve this one A B C D 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 A bar B bar A bar B A B A B bar C bar D bar C bar D C D C D bar 0 1 3 4 5 7 10 12 13 that is the one is present 1 5 7 9 11 13 and 15. So what is the major possibility to make? सर 3 स्क्वाड बनेंगे। सर क्वाड 3 क्वाड बनेंगे। देखो एक क्वाड ये हो गया, एक क्वाड ये हो गया, एक क्वाड ये हो गया। देखो यही पॉसिबल है। सबसे पहले क्वाड की वैल्यू आएगी दैट इज द कॉमन सी बार डी। सेकंड वाली क्वाड की वैल्यू आएगी, दोनों में कॉमन क्या है? डी ए डी ए और ए डी, दैट इज द सेम थिंग। यस सर। दिस इज योर क्वाड वैल्यू इज नाउ कॉमन इज नाउ बी, कॉमन इज नाउ डी। इन तीनों में से डी कॉमन निकलेगा, आउटपुट इज नाउ सी बार बी प्लस ए, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ क्वाड। क्लियर ऑल ऑफ यू? हाउ टू मेक पेयरिंग फॉर ईच एंड एवरीवन। अब यहां से पता लग गया आपको कि एक वन बच गया था, उसको मैंने पेयर नहीं बनाया, क्वाड ही बनाया, बिकॉज वी आर टू मैक्सिमम पॉसिबल फिजिबल टू डू द मिनिमाइजेशन कि कितने वेरिएबल लेस आपको आ सकते हैं। नाउ एक चीज बच्चे यहां से और आ सकती है आगे, आपको यहां से चेक करिए। समटाइम इट मे बी आस्क्ड क्वेश्चन, you have to minimize this expression and also minimize this expression and to solve this equation by using basic gates। आपकी इक्वेशन ये आई y is equal to d c bar plus b plus a। solve this equation and draw this equation by using logic diagram। इस इक्वेशन को लॉजिक डायग्राम से भी आप एक्सप्लेन करो। So that is expression is now d dot c bar plus b plus a। यही एक्सप्रेशन है आपका? Yes or no, students? Yes sir. Okay. Yes, so sir. next scenario is now to solve this equation or to describe this equation in term of your logic gates। Now this is your c bar b plus a। ये कौन सा गेट है आपका? This is your OR gate। I have give the value c, no, देखो ये गेट फिजिबल है, इससे बनने के लिए सेम ही आउटपुट आएगी। आई हैव टू मेक ये नॉट गेट, नॉट गेट में सी दी, आउटपुट क्या आएगी? सी बार ए बी, तीन इनपुट दिए दो, तीनों ऐड होगी अकॉर्डिंग टू योर ऑर गेट। फिर आ गया डॉट डी, मींस एक एंड गेट लगेगा जिसपे वैल्यू जाएगी डी और आपके लास्ट का आंसर आएगा दैट इज डी डॉट ए बी प्लस सी बार। दिस इज द सॉल्व एक्सप्रेशन बाय यूजिंग बेसिक गेट। देखो ये सिनेरियो पता लगा है सबको? यस सर। How to make this diagram by using your Boolean expression? Clear all of you this expression? यस सर। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ए मैप से आपको इक्वेशन दी हो, उसको मिनिमाइज करने के लिए कहा हो, इट आल्सो ड्रा बाय यूजिंग योर बेसिक लॉजिक गेट्स। तो उसको आपको बेसिक लॉजिक गेट से भी सॉल्व करना पड़ सकता है बाय दिस वन।
अगर एडिशन आ रहा है तो दैट इज एन और ऑपरेटर। और ऑपरेटर से क्या होगा, आप एंड गेट यूज करोगे, सॉरी और गेट। और गेट आएगा, उससे तीनों ऐड हो गए, ऐड मल्टीप्लिकेशन हुआ डी के साथ, तो फिर एंड गेट लग गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डी, दैट इज द सेम आंसर इक्वल टू यू। क्लियर ऑल ऑफ यू? चले आगे। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं अब आगे। पीओएस फॉर्म, पीओएस फॉर्म करके देख लेते हैं। ये किसने क्वेश्चन किया? मनप्रीत सिंह। बच्चे गेट की 2 इनपुट है या 3? टेल कहां पे लाइन पे है बच्चे? हेलो मनप्रीत, रोल नंबर 19000188। हेलो, आई एम ऑडिबल? Am I audible to मनप्रीत सिंह? हेलो बच्चे, किसी की क्यूरी थी रिगार्डिंग कि आपने सर यहाँ पे गेट्स पे मल्टीपल इनपुट कैसे दे दी। सो मल्टीपल इनपुट मीन्स आप यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट दे सकते हो एंड गेट पे और गेट पे। ओके, तो यहाँ पे आपकी मल्टीपल पॉसिबल गेट भी हो सकती है कि कोई भी आप और गेट लिखो तो उसके अकॉर्डिंग you have to give your multiple inputs a b plus c, that is the a plus b plus c. Similarly you can do with your AND gate also, a b c, that is the a dot b dot c. So that is the term of your logical expression. So next expression हम solve करते हैं by using POS method. I have right equation y equal to pi of capital M 0, 4, 5, 7, 10, 11, 14 and 15. How many variable boxes are using for this K map? How many variable are used in that? और सर कितने वेरिएबल चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए K map को? 4 वेरिएबल। बट यहाँ पे अब समेशन ऑफ m नहीं है, पाई ऑफ m है, तो इससे क्या एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ? दैट इज योर पीओएस फॉर्म और दैट शुड बी नोन एज योर मैक्स टर्म। ये आपकी मैक्स टर्म है। y इज नोटेड इज योर m0, m4, m5, तो दैट इज अ टर्म लाइक दिस वे। ये जितनी भी टर्म है आपकी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन टर्म, दैट इज नॉट ऐड इन सिनेरियो इन दैट। यहाँ पे ऐड नहीं लगेगा, that is the product of sum m5, m7, m10, m11, m14, m15. Now I have draw the K map over. सर e की पावर m कैपिटल नहीं आएगा, ये सॉरी e m यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा y के आगे? ये m कैपिटल ही है बच्चे सारा। सर उधर वाली साइड पे थोड़ा सा। हाँ जी, that is the scenario for using your min term. ये मैंने बताया कि min term में ये होगा, आप max term कर रहे हो। ओके, ऐसे ही राइट करते हो K map। 4, 5, 7, 11, 10, 12, 14। देखो बाय यूजिंग K map 0 0 को क्या लिखोगे? C plus D. This is the C plus D bar. This is C bar plus D bar. This is C bar plus D. This is A plus B. A plus B bar. A bar plus B. A bar plus B. देखो समझ लगी बच्चे सबको? हाउ टू राइट इन द टर्म ऑफ योर पीओएस मैनर।
चेक आउट दिस के मैप। क्लियर है बच्चे? सभी चीजें रिवर्स हो गई। ओके सर ए बार प्लस बी बार आएगा वहां पे थर्ड पोजीशन पे। ए बार प्लस बी बार। एक पता लग गया बच्चे, हाउ टू राइट योर के मैप इन द टर्म ऑफ योर पीओएस। Yes, sir. Now your max term is now 0. I have mentioned 0 for that. 4 0 5 0 7 0 10 0 11 0 14 0 and 13 गलत हो गया कुछ, 20 हो गया 0 4 5 7 देखो बस अब इसकी पेयरिंग बनाओ। अरे एक तो क्वाड बन रहा है। ये क्वाड बन रहा है आपका, ठीक है। इस क्वाड का एक्सप्रेशन क्या होगा पहले बताओ। दोनों में कॉमन क्या है पहले ये बताओ। C bar. C बार और यहाँ पे कॉमन क्या है A bar. A बार। एक्सप्रेशन इज C बार प्लस A बार। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Now the second one is now making pair this one. इसको पेयर बनाओ, क्या वैल्यू आएगी दोनों में से कॉमन A प्लस B बार, ऊपर से कॉमन क्या आएगा दैट इज देयर प्लस A bar. क्लियर? नाउ मेक वन दिस पेयर। इसका एक्सप्रेशन लिख लो C प्लस B प्लस A। Clear this one? How to write the final equation, that is the A plus C plus D into A plus B bar plus B bar into A bar plus C bar। देखो क्लियर है बच्चे सबको? Yes, sir. क्लियर है बच्चे? हेलो हेलो Yes, sir. हेलो सर। यस सर। बताओ बताओ किसको कोई डाउट है बच्चे? सर सर जैसे कि ये मैक्स है तो हम सर ये कोशिश नहीं करेंगे कि पेयर बने सर। पेयर नहीं बने? पेयर ही तो बनाया बच्चे, किसमें नहीं सर ये जो आपने नीचे क्वाड बनाया सर इसके दो पेयर नहीं हम बनाएंगे। फिर वही बात मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, मैक्सिमम फिजिबिलिटी आपने बनानी है कि आपका क्वाड बने, बड़ा से बड़ा पेयर बने। जितना बड़ा पेयर बनेगा उतनी मैक्सिमाइजेशन, उतनी मिनिमाइजेशन मैक्सिमम होगी। ओके सर ठीक है। ठीक है ना? सबसे पहले हमारी नेचर ये रहेगी। सर इसमें प्लस है तो कॉमन कैसे लेंगे? हैं? प्लस है कॉमन, सर आप प्लस दोनों है में तो से, प्लस आप में दोनों कॉमन फिगर में कैसे? से मान लो ये एग्जांपल है, ये क्वाड बनाया मैंने, चेक करो बच्चे। इन दोनों में से कॉमन वेरिएबल देखना है, C बार प्लस G बार, C प्लस D। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये एक तरह का दो वेरिएबल है। प्लस और इनटू को मत देखो, हमने यहाँ पे वेरिएबल देखना है। ये उस फिगर की नोटेशन है उसको राइट अप करने का। इन दोनों में वेरिएबल कॉमन कौन से है ये देख रहे हो आप, ठीक है? इसमें प्लस से आप कॉमन नहीं निकाल रहे इन दोनों में से, इसमें से आप केवल वेरिएबल को कॉमन निकाल रहे हो। क्लियर एवरीवन? और डाउट इसमें पूछो बच्चे, डाउट है तो क्लियर करो, बिकॉज दैट इज अ वेरी बेसिक वन। ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। बताओ क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है बच्चे रिगार्डिंग योर पीओएस मैनर? यस सर। चलो इसके रिगार्डिंग मैं एक पोल भेज रहा हूँ, ये पीओएस के रिलेटेड ही आपका के मैप है, इसको सॉल्व करके बताओ। आई हैव लॉन्च दिस वन। मिल गया पोल? देखो इस बार सबको। Yes, sir. सर प्लीज थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया करो। करो करो करो। मैं बच्चे पार्टिसिपेंट्स को देख के ही लॉन्च को पोल को एंड करता हूँ। व्हाटएवर योर मे बी टुडे पार्टिसिपेंट इज मे बी 70। अगर मैक्सिमम टाइम मैं दे रहा हूँ 68 69 अटेम्प्ट कर लेते हैं, देन आई हैव क्लोज दिस वन पोल। ओके सर। अब बता दिया करो तभी मैं क्लोज करूंगा। ओके सर। इसने नहीं किया होता।
बच्चे हो गया सोल्व? I have to close this one poll. Okay? Hello? Okay, sir. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब बताओ प्रॉब्लम आई इसमें कुछ सॉल्व करें बोर्ड पे के जरूरत है कि नहीं बच्चे? सर कर दो सॉल्व। ये कर देता हूं क्योंकि पीयूएस है, पीयूएस के हमने एग्जांपल देखो। y equal to pi of m 0 2 3 5 7 2 3 5 7 कितने वेरिएबल का के मैप है ये? 3 वेरिएबल के मैप। ओके, यू हैव टू रिक्वायर्ड 8 बॉक्सेस। दिस इज द 8 बॉक्सेस, दिस इज a, दिस इज योर bc 0 1 2 3 4 5 6 and 7। Clear all of you? 0 पे 0 0 0 0 and 0। देखो यही पे वैल्यू हाईलाइट होगी यहाँ पे सबकी। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या होगा, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। क्लियर? तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या थी? 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे 0 1। दिस इज योर a, दिस इज योर a बार। अब सबसे पहले इसकी वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, इसको ऊपर हाईलाइट कर देता हूँ। b प्लस c बार, b बार प्लस c, b बार प्लस c। देखो यही वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, इस पेयर का a बार प्लस c बार। क्लियर? इस पेयर की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज कॉमन, कॉमन इज नाउ a प्लस b बार। फिर ये पेयर रह गया जो फोल्ड करके ऊपर वाला पेयर हुआ, इस पेयर की वैल्यू आएगी दैट इज a प्लस c। सो फाइनल आंसर इज नाउ y इज इक्वल टू a बार प्लस c बार, a प्लस b बार, a प्लस c। दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन A। क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. किसी को डाउट है बच्चे तो बताओ। सर बट ऑप्शन ए में बीच में प्लस था ब्रैकेट्स के। वो उस पे यस सर डी ऑप्शन आएगा सर। तो सर उस हिसाब से तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ना? हाँ, उसके हिसाब से नन ऑफ दीज है। यस सर डी ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन डी। उसी में यही कंफ्यूजन थी, वहां पे मैंने आंसर ये डाला हुआ, बट आंसर इज नाउ नन ऑफ दीज। मींस अगर हम मैं उसको छोड़ो पोल को, अब ये दैट इज द कि हमने इसको फाइनल आंसर क्या निकाला है, दैट इज दिस वन। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू हाउ टू सॉल्व पीओएस एंड एसओपी मैनर? Yes, sir. Any doubt up to this end? Clear to me? Then I have to go to the next topic. बताओ बच्चे, that is a very important topic. किसी को भी डाउट है regarding the K map, you have to solve with this one any type of pairing, or it may be solved with the help of POS manner also. उसकी भी हमने एग्जांपल्स कुछ कर ली हैं। बाकी बच्चे आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है how to solve them. Any doubt up to this end regarding the pairing? सर बताओ सर एक बार 0 से 4 की पेयरिंग करें। किसकी किसकी? 0 एंड 4 की। 0 एंड 4 की मैं समझा नहीं, कैसे पेयरिंग? सर मतलब कि हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे पेयरिंग करूं? यस सर। एक बार मान लो यहाँ पे भी 0 आ जाए। हाँ जी सर। फिर सर a बार b c होगा। मान लो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा तो ये एक पेयर बन गया। यस सर। तो चाहे यहाँ से पेयर बना लो, चाहे यहाँ से पेयर बना लो, वो आप ही का सूटेबल कर रहा है। अगर सपोज हमें सर कोई ऊपर से नीचे की पेयरिंग करनी पड़े तो वो कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन? ये ऊपर से नीचे की है मैंने, ये देखो। हाँ जी, नहीं एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे सर इसका वेरिएबल? एक्सप्रेशन देखो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है सर? b c a b। b c इसकी वैल्यू फाइनल होगी b प्लस c। अच्छा सर, फिर a देखना है आपने, एक नॉर्मल सा सिनेरियो है, कॉमन वेरिएबल देखना ओनली बस।
फिर उस वेरिएबल को आप अगर एसओ मिन टर्म है तो एसओपी में राइट करोगे, अगर मैक्स टर्म है तो उसको पीओएस में राइट करोगे। दैट इज ऑल। यहाँ पे प्लस में मत जाओ कि यहाँ से आप कैसे कॉमन निकाल रहे हो। यू हैव टू टेक वेरिएबल कॉमन फ्रॉम द दैट वेरिएबल दैट एक्सप्रेशन। वहां से जो कॉमन वेरिएबल निकलेगा उसके अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वट एवर इन योर एसओपी मैनर, वट एवर इन योर पीओएस मैनर, उसके ढंग से आप फिर लिखोगे। ओके सर। यहाँ पे आपको देखो कि ये प्लस प्लस है, इसमें मैंने कॉमन क्या निकालना है, हमने यहाँ से केवल वेरिएबल कॉमन निकालना है। ये एसओपीयूएस मैक्स टर्म थी इसलिए मैंने बी प्लस लिखा हुआ है, बी इंटू सी नहीं लिखा हुआ बिकॉज दैट इज अंडर कैटेगरी ऑफ योर मिन टर्म। ओके सर। क्लियर ऑल ऑफ यू? चले आगे। तो इसके रिगार्डिंग की सारी पीपीटी है। वैसे जो मैंने पीपीटी शेयर की हुई है इसके में ना सब के मैप की पेयरिंग के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट पेयरिंग के बारे में बताया हुआ है। जैसे ये स्क्रीन में मैंने देखोगे तो सारे पेयर के बारे में बताया, जो मैंने सारी सभी चीजें आपको एग्जांपल से सॉल्व करा दी। क्लियर? क्लियर एवरीवन? सो नाउ एक एग्जांपल और करते हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक से। हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं, that should be known as here don't care terms. Don't care terms are those terms which are utilized for the pairing purpose. Means अगर हमारी मैक्सिमम पेयरिंग होगी तो हम उस केस में don't care टर्म को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि don't care टर्म का हमारा यूज क्या है। I have explained one example to all of you. एग्जाम्पल करते हैं। y equal to summation of m. The min terms are 1, 4, 8, 12. 1, 4, 8, 12. 13 plus 15 plus don't care, that is denoted by your d. The term is now 3 and 14. So ये कितने वेरिएबल का के मैप है हमारे पास? How many variables are using in that k map? Sir, 4 variables. 4 variable k map. 1, 4, 8, Yes, sir. 12, 13, 15. Don't care term 3 and 14. Okay, I have to draw the 16 variable k map. So 16 boxes. Now पुट करते हैं वैल्यू। चलो पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं। Program. Clear? 1, 4, 8, 12, 13, 15. Don't care term, that is a 3 and 14. It should be represented by your cross. Okay? 14, that is by cross. Don't care term को हम किससे represent करेंगे? Cross के साथ. Now you have to use don't care term for also make for the pairing. ये don't care term हम pairing के लिए यूज कर सकते हैं जिससे हमारे मैक्सिमम 1 पेयर हो जाए। don't care से हमारी पेयर मैक्सिमम क्वाड हो जाए, ऑक्टेट हो जाए और पेयर बन जाए। तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी पेयर फिजिबल है बताओ? एक ये क्वाड बन रहा है, क्वाड। ये एक क्वाड बन रहा है हमारा। यस सर। और बताओ, और ये मेरा तीन पेयर बनेंगे। ये पेयर बन रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग डॉट के टर्म फॉर द पेयरिंग पर्पस। ये एक पेयर बन रहा है, एक 4 और 12 एक पेयर बन रहा है। देखो जितने मैंने पेयर बनाए हैं वो फिजिबल हैं सब। देखो
तो इसमें मेरे पास ये एक्सप्रेशन पे वैल्यू क्या आएगी, ये क्वाड का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताओ। कॉमन क्या है यहाँ पे, ए बी। क्लियर एवरीवन? लास्ट देख रहे हो बच्चे सभी? यस सर। ए बी एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे 3 and 14 के लिए। अब इस पेयर पे क्या वैल्यू आएगी बताओ, पेयर पे वैल्यू क्या आएगी। कॉमन इसमें क्या है, ए बी, ए बार बी बार प्लस डी, ये वैल्यू आ जाएगी। इस पेयर पे क्या वैल्यू आएगी, एक कॉमन आ जाएगा सी बार डी बार, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, ए। क्लियर? इस पेयर की वैल्यू क्या आएगी, कॉमन इज नाउ सी डी एंड बी। देखो ये वैल्यू आएगी सभी, देखो। एक्सक्यूज मी सर। सर लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ऊपर वाला पेयर कैसे बनाया वो बताना। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला पेयर, ये बच्चे 1 कवर था ना, ये 1 अकेला था, इसका पेयर मैंने इसके साथ बना दिया, ये 1 का पेयर इसके साथ बना दिया। पता लगा? सर इसमें जो बीच वाला दो बार यूज करा है ये वाला, हाँ बिल्कुल। वी आर यूजिंग दिस वन फॉर द 3 पेयरिंग। एक इससे क्वाड बन गया, फिर इसके साथ पेयर बन गया, फिर इसके साथ 1 बन गया। बट जब भी मैं पेयर बना रहा हूं तो मेरे पेयर में कोई ना कोई तो एक वेरिएबल, एक मिन टर्म तो एक्स्ट्रा है ही, है ना। क्लियर? तो इसका एक्सप्रेशन क्या बना, ए बी अकॉर्डिंग टू दिस वन। इसका एक्सप्रेशन बना डी विद द वैल्यू इज ए बार बी बार। इस वेरिएबल का एक्सप्रेशन बना सी बार डी बार विद योर ए। दिस वन इज नाउ सी बार डी बार विद योर बी। क्लियर ऑल ऑफ यू? मीन डोंट केयर टर्म का क्या यूज हुआ कि अगर मेरे पास ये पेयरिंग के लिए यूज है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे डोंट केयर टर्म नहीं होती, यहाँ पे मेरी डोंट केयर टर्म मिस है, मान लो यहाँ एक्सप्रेशन नहीं होगा डोंट केयर टर्म में, तो फिर मेरा क्वाड नहीं बनना था। नो सर। नहीं, तो उस केस से मेरा ये एक पेयर बन जाना था, तो ये 1 का मेरे को सीधा एक्सप्रेशन लिखना पड़ना था। सो मींस उससे मेरा क्या फिजिबल वैल्यू थी, मेरे एक्सप्रेशन में मिनिमाइजेशन कम होगी। So don't care term should be used for the maximum minimization also. That should be known as don't care term. तो don't care term, तो मान लो कोई don't care term यहाँ पे भी मारी है 10 के पास, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी पेयरिंग होनी भी जरूरी है, because don't care are term used for pairing for the min term or maybe your max term. अगर ये क्रॉस कोई बच भी गया तो इसकी पेयरिंग हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, because that term are used for the pairing for the your min term and the max term purpose. क्लियर? कोई यहाँ पे 1 बच गया, क्रॉस बच गया, तो ये नहीं है इसकी हम पेयरिंग बना लेंगे, दैट इज नॉट अ फिजिबल। हमारे 1 मिन टर्म कवर हो गया पेयर में, सो दैट इज अ फिजिबल एंड फॉर द यूजिंग फॉर योर डोंट केयर टर्म। बताओ बच्चे यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट अप टू दिस एंड रिगार्डिंग द के मैप? नो सर। बिकॉज दिस टॉपिक की हेल्प से ही हम हमारे आगे सारे जहां भी अखीर तक जितने भी टाइम एंड काउंटर कुछ भी पढ़ेंगे तो के मैप हमारा यूज होगा ही होगा बच्चे। यस सर। किसी को डाउट बच्चे यहां तक को तो पूछ लो बच्चे। एनी डाउट अप टू दिस एंड रिगार्डिंग द के मैप पेयरिंग? नो सर। क्लियर है? किसी को डाउट? एनी डोंट केयर, पीओएस, एसओपी, इंप्रेशन, मेन टर्म, मैक्स टर्म, व्हाटएवर द पेयरिंग रिगार्डिंग योर ऑक्टेट के रिगार्डिंग कुछ पेयरिंग करनी हो तो देख लो बच्चे। किसी को डाउट? ओके बच्चे, थैंक्स लॉट फॉर योर। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी लिसन हमने यहाँ पे अब बेसिकली क्या किया है,
we have to doing to minimize your boolean algebra, boolean expression. boolean expression को minimize करने के लिए सबसे पहले मेथड हमने कौन सा किया था? that is a boolean loss or boolean algebra by using different type of theorem or your boolean expressions. तो हमने different laws जो पढ़े थे, clear? सेकंड मेथड हमारा क्या हो गया? by using k-map. k-map से भी हम limitations को सॉल्व कर सकते हैं, बट k-map से क्या होगा? अगर मेरे वेरिएबल 5 हो गए, 6 हो गए, तो मेरा 5 वेरिएबल के लिए k-map को मेरे कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे बताओ? How many boxes are required for if you are using 5 variable? 25, 24, 32, 2 raised to power 5, that is 32 boxes. तो ये 16 boxes के 2 k-map बनेंगे इसमें, क्लियर? तो अगर इसी में 6 हो गया तो मेरे को 64 बॉक्सेस चाहिए, तो मेरे ऐसे ही 16 बॉक्सेस के 4 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है? तो वो हमारा उतना ही लेंथी होता रहेगा बच्चे। तो मींस के मैप की एक लिमिटेशन भी है कि अगर हम यहाँ पे इट मे बी सफिशिएंट अप टू सॉल्व अप टू 4 to 5 वेरिएबल, 5 वेरिएबल तक हम फिर भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट जैसे ही 6 वेरिएबल आएगा दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व फॉर दिस मेथड इन केस ऑफ योर 6। तो उसके लिए मिनिमाइजेशन के लिए हमारे पास एक और इससे भी लेंथी मेथड जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज द Kuhn-Mackenzie मेथड, दैट इज द Q1 मेथड. It should be discussed in your next lecture. Okay, all of you? Okay, sir. Yes, sir. Okay, thanks a lot for the today. So you make practice of the K-max maximum equation because that is a very interesting topic. तो इसके रिगार्डिंग आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको आगे हेल्पफुल रहेगा आगे, ठीक है बच्चे? तो K-map की प्रैक्टिस करो, जैसे आगे हम आगे करेंगे हमारा K-map बहुत यूज होगा। तो इफ यू फाउंड एनी डाउट पेयरिंग प्रैक्टिस करके क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर करेंगे, क्लियर? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट बच्चे, थैंक यू सर। कोई भी डिफिकल्टी डाउट होगा नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, क्लियर बच्चे? यस सर। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी श्योर। तो पीपीटी शेयर कर दो। पीपीटी बच्चे मैं शेयर कर देता हूं, दैट इज अ K-map पीपीटी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो पीछे भी K-map वाली वही पीपीटी है अभी, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बच्चे सारी एग्जांपल्स ही करवाई हैं। ओके सर। यस सर। आज जो हमने लेक्चर में लिए हमने 6-7 एग्जांपल्स ही किए हैं ओनली डिस्कशन टू सॉल्व द K-map। ओके सर। ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके सर, थैंक्स, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।